So few days back, I uploaded a post on my Instagram जहाँ पे मैंने दिखाया था कि 2025 में exactly how much money I made and how much money actually spent पूरा ग्राफ के साथ कि exactly month wise कितना पैसा we had made and exactly month wise how much money we spent. So showing you exactly the clear idea about कितना कौन कैसे मतलब बिजनेस ऑलवेज कीप्स ऑन गोइंग अप एंड डाउन, कौन से मंथ में बड़ा प्रॉफिट, कौन से मंथ में छोटा प्रॉफिट, कौन से मंथ में बहुत ज्यादा एक्सपेंस, कौन से मंथ में कम एक्सपेंस, ऑल दो स्टफ आई ऑलवेज कीप ऑन ट्रैकिंग. So tracking your income and expense is something what I absolutely recommend to everyone. Like you should always track your income and expense. No matter what, you should always track your expenses. क्योंकि जब तक आप अपना expense को track नहीं करोगे, there will be absolutely no stopping on your expenses. And this is the exact mistake what I did for many years. क्योंकि जब आप मेरे साथ भी वही होता था कि like मैं कभी expense को track नहीं करता. I always used to track income a bit, पर मैं ज्यादा expense को track नहीं करता था. Expense track जब नहीं करते हो, आपको हर दिन लगेगा कि ये भी मैं खरीद लेता हूँ, वो भी मैं खरीद लेता हूँ, ये भी मेरे को चाहिए. इवन इफ यू डोंट नीड इट, यू विल फील लाइक इसको भी ले लेता हूँ, इसको भी ले लेता हूँ. इट विल ऑलवेज फील समथिंग लाइक दिस. बट द मोमेंट यू स्टार्ट ट्रैकिंग द एक्सपेंस, यू विल गेट टू नो कि नो, मे बी आई शुड कंट्रोल माई सेल्फ, मे बी आई शुड स्टॉप माई सेल्फ, मे बी मैं 2 दिन सोचता हूँ, उसके बाद इफ आई रियली नीड इट, प्रॉब्ली आई विल बाय इट. So something like this. So tracking your income and expense is something what I absolutely recommend to everyone. And this is the reason I use one of my Notion templates for income expense tracking, which I've been using for last 4 years, I believe, and it absolutely helps me a lot. Last 2 साल मैंने इतने अच्छे से उसको ट्रैक नहीं किया था, but 2024 and 25 I have been tracking each day, each month, each week, each month, daily. So at least I get to know कि कहाँ पे पैसा ज़्यादा वेस्ट हो रहा है, कहाँ पे पैसा ज़्यादा खर्चा हो रहा है, and which source of income is actually making more money and which is actually making less money, so that I can decide कि कहाँ पे मेरे को ज़्यादा टाइम देना चाहिए, कहाँ पे मेरे को कम टाइम देना चाहिए. All those decisions you can only make once you are actually tracking your income and expenses, which is very important. Until unless you are tracking your income and expense, there is no way actually you can save your money. क्योंकि जो कहता है ना कि you don't get rich by spending, you get rich by actually saving it and investing it in the right way. When I say saving it, it means कि अगर आप बहुत पैसा कमा रहे हो, वहां से probably you can, if you really want to spend maybe 5-10%, you can still spend. That doesn't mean you will spend 90% of your income. That doesn't mean you will spend 80% of your income. That is bullshit. So you should be saving that. So जब तक आप track नहीं करोगे, it's impossible. So track investing, saving is something what is absolutely needed. So ये वाला video में I will show you exactly about my template, about how I normally track my income and expense, exactly मैं कैसे track करता हूँ category wise, and how you can actually do the same end to end. I will show you, and I will also put the link how you can get the access to my income and expense Notion template. How to use it, how exactly you can use, सब कुछ मैं अपने स्क्रीन में डिटेल में दिखाऊंगा. So make sure to watch this video till the end, so at least you will get to learn something. Let's go ahead and start from my screen. Okay, so this is basically my expense and income tracker. So इसका link मैंने नीचे में दे दिया. You can just go ahead and download. So when you download, you will get an option on the top saying duplicate. So once you duplicate, click on duplicate. It will automatically copy to your Notion. अगर आपका Notion में account नहीं है, you can register a free account in Notion. उसका भी link मैं नीचे में दे दूँगा. So this is basically how I normally track everything. So यहाँ पे income के categories रहते हैं and यहाँ पे expenses category रहते हैं. All those dummy data my office team has already imported. So उसीलिए मैंने just खाली यहाँ पे just to show you guys I have just put it. So मैं अभी इसको this month कर देता हूँ, ठीक है. So this is where you need to make your categories for expense categories and the income categories. For example, let's say हम income का अगर पहले हमें कुछ category बनाना है, you have to click on new page and you have to select, for example, let's say clients work, something like this, let's say. and यहाँ पे tags में आप कुछ भी create कर सकते हो, professional bonus. तो यहाँ पे अगर मैं करता हूँ कुछ की clients, अगर मैं बना देता हूँ कुछ tag, and group में यहाँ पे मैं करता हूँ personal, ये है अपना क्या income, ठीक है. यहाँ पे हो गया income tracker पे ये चले जाएगा, ठीक है. तो टैग्स हो गया, ग्रुप हो गया. इफ़ यू डोंट वांट टू यूज टैग्स ग्रुप, इसको भी आप छोड़ सकते हो. बस खाली आपको यहाँ पे कैटेगरी बनाना है. तो वंस द कैटेगरी इज डन, यू कैन सी द कैटेगरी इज डन. अगर आपको आइकॉन कुछ डालना है, क्लिक ऑन आइकॉन मे बी एंड पुट द आइकॉन समथिंग लाइक दिस. तो आइकॉन इज डन. सो अभी अगर यही सेम कैटेगरी, सो आपको बेसिकली कैटेगरी एक बार ही बनाना है. आपके जो भी नॉर्मली मतलब इनकम हेड्स रहते हैं वो सारे कैटेगरी एक बार बनाओ. जो भी एक्सपेंस हेड्स रहते हैं उसका भी एक्सपेंसेस का हेड बनाओ. तो मैं आपको इनकम का पहले दिखाता हूँ. इनकम का एक कैटेगरी होगा, यहाँ पे आपको ऐड इनकम जाके करना है. यहाँ पे लिखना है कि
क्लाइंट जॉन पेमेंट फॉर दिसंबर 2025, यहाँ पे लेट्स से 15,000 रुपीज़, डेट अगर यहाँ पे कुछ एक हो गया, इनकम कैटेगरी में आप यहाँ पे सिलेक्ट करो क्लाइंट वर्क, एंड यहाँ अगर उसका कोई पीडीएफ है, इनवॉइस है, कुछ भी है, यहाँ पे आप अटैच द, मतलब यहाँ पे आप डायरेक्टली ड्रैग ड्रॉप करके यहाँ पे कॉपी पेस्ट नहीं मार सकते हो, यहाँ पे कुछ एक कमेंट भी लिख सकते हो कि क्लाइंट डिलेड पेमेंट, उसके बाद क्लाइंट पेड बाय बैंक, अगर आपको कमेंट्स कुछ डालना है या फिर अटैच इनवॉइस करना है, यहाँ पे भी कुछ अगर आपको डालना है, यू कैन पुट एनीथिंग लाइक दैट, मोर पेमेंट पेंडिंग, समथिंग लाइक दिस, एनीथिंग यू कैन लिटरली पुट, इट्स ऑल कम्प्लीटली लाइक एम्प्टी स्पेस, यू कैन यूज़ इट। एंड यहाँ पे अगर आपको कुछ आइकॉन डालना है, यू कैन पुट वन आइकॉन एज वेल। तो फिर आपको यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे इनकम के हेड के अंदर, बिकॉज आई हैव सिलेक्टेड इनकम लास्ट 30 डेज, यहाँ पे अगर आपको कुछ मतलब फिल्टर चेंज करना है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो आई हैव चेंज टू दिस मंथ। अगर आपको दिस ईयर का देखना है तो यू कैन लिटरली क्लिक ऑन ईयर, आपको पूरा ईयर का इनकम पूरा एक जगह में दिखा देगा, एंड विल शो यू एग्जैक्टली टोटल कितना इनकम हुआ। अगर आपको ओनली दिस मंथ देखना है तो यू विल जस्ट सिलेक्ट हियर मंथ, एंड इट विल शो यू एग्जैक्टली ये वाले मंथ में कितना इनकम हुआ, कहाँ कहाँ पे इनकम हुआ। सो वंस यू क्रिएट हियर फ्रॉम ऐड इनकम, इट विल ऑटोमेटिकली गेट लिस्टेड हियर। तो बेसिकली आपको इनकम के कैटेगरीज बनाना है, उसके बाद जाके इनकम क्रिएट करना है, वैसे ही करके एक्सपेंसेस के कैटेगरीज बनाना है। फॉर एग्जांपल ये हो गया ठीक है। अगर आप और कुछ एक बनाते हो, लेट्स से मैं यहाँ पे कुछ कैटेगरी बनाता हूँ कि फैमिली एक्सपेंसेस कुछ एक बनाता हूँ, यहाँ पे मैं बना देता हूँ कि चलो ठीक है, प्रॉब्ली टैक्स यहाँ पे कुछ एक डाल दिया, ग्रुप पे पर्सनल एक्सपेंसेस डाल दिया, एंड यहाँ पे अगर आपको इमोजी कुछ डालना है तो यू कैन जस्ट क्लिक ऑन इट एंड पुट सम इमोजी एज वेल। इमोजी भी डल गया। तो यहाँ पे एक बार आपको एक्सपेंस का कैटेगरी आपको एक बार बनाना है, एक्सपेंस अब यहाँ पे लिखना है, लेट्स से फैमिली ट्रैवल प्लान और समथिंग लाइक दैट, एंड यहाँ पे लेट्स से एक्सपेंस आपका हो गया लेट्स से 4,000 रुपीज़, एंड यहाँ पे आप डेट डालोगे, जो भी डेट डालना है यहाँ पे आप डालोगे, एक्सपेंस कैटेगरी यहाँ पे डालोगे फैमिली एक्सपेंसेस, ठीक है। तो ऐसे करके आपको यहाँ पे इनकम जैसे आप ऐड करते हो वैसे एक्सपेंस भी ऐड करोगे। एक बार कैटेगरी ऐड करना है, उसके बाद जाके हर दिन डे एंड में इनकम एक्सपेंस जो भी हुआ एंड टू एंड आपको ऐड करते 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 जाना है। आप जैसे ही ऐड करोगे ऑटोमेटिकली ऑल दिस चार्ट्स विल कम अप ऑटोमेटिकली, एंड ये चार्ट्स में बहुत सारे डिज़ाइन है, इफ़ यू रियली नीड सो आप यहाँ पे कुछ भी डिज़ाइन चेंज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से चार्ट अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ, यहाँ पे आप चैट का आइकॉन भी आप इधर उधर कुछ भी चेंज कर सकते हो। यहाँ पे आपको चैट का आइकॉन ऐसे हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी कर सकते हो, आपको जैसे भी आइकॉन्स चाहिए यू कैन लिटरली जस्ट डू इट। सो मैं नॉर्मली आई प्रीफर दिस वन, द वर्टिकल बार। बहुत लोगों को हॉरिजॉन्टल बार भी अच्छा लगता है। यू कैन यूज़ एनीथिंग यू वांट, if you want to use the line chart something like this, if you want to pie chart you can do use like this as well। मैं horizontal chart को रखता हूँ, ठीक है। उसके बाद ये आपको ऑटोमेटिकली यहाँ पे दिखा देगा कि चलो ठीक है, ये मंथ में ट्रैवल में कितना एक्सपेंस हो गया, ट्रांसपोर्ट में कितना हो गया, रेंट एंड होम पे कितना हो गया, एंड टू एंड आपको पूरा आ जाएगा। दिस मंथ अगर आपको दिस ईयर पूरा देखना है तो दिस ईयर अगर मारोगे तो देखोगे तो पूरा ईयर का पूरा डिटेल्स में आ गया कि ये ईयर में आपने कहाँ कहाँ सबसे ज़्यादा एजुकेशन पे सबसे गया ज़्यादा, ट्रैवल पे कितना गया। एंड यहाँ से अगर आपको शॉर्ट बहुत सारे ऑप्शंस भी है, यू कैन लिटरली जस्ट डू इट। अगर आपको यहाँ पे ग्रुप बाय शॉर्ट बाय कुछ भी करना है, लेट्स से शॉर्ट बाय मैं करता हूँ मैनुअल, तो आप देख सकते हो कि ऑटोमेटिकली ये ऊपर नीचे हो गया, ठीक है। यहाँ पे फैमिली एक्सपेंस अभी मैंने एक ऐड किया तो यहाँ पे भी आ चुका है ऑटोमेटिकली। आप जैसे जैसे यहाँ पे एक्सपेंस एंड इनकम ऐड करोगे और ये सारे चार्ट्स ऑटोमेटिकली बिल्ड होते जाएंगे। इनकम दिस मंथ में भी देखोगे तो पूरा ऑटोमेटिकली यहाँ पे क्लियरली इट्स शोइंग कि दिसंबर वाले मंथ में कहाँ कहाँ पे इनकम हुआ, बिजनेस इनकम कितना हुआ, कैशबैक कितना हुआ, क्लाइंट वर्क कितना हुआ, ये वाला हमने एंट्री किया हुआ था। तो अगर आपको इसका भी मतलब आपको कुछ डिज़ाइन चेंज चाहिए, यू कैन लिटरली जस्ट क्लिक हियर एंड यू कैन सी कि कितना कितना पेमेंट्स आया हुआ है, टोटल दिसंबर में इतना पैसा आया, एंड कौन से वाले एरिया से कितना परसेंटेज पे आया, 18% कहाँ से आया, 5% कहाँ से आया, यहाँ पे आपको क्लियरली आ जाएगा। उसके चार्ट्स फॉर द होल ईयर ऑटोमेटिकली दिखाएगा कि भाई ठीक है, एक्सपेंसेस आपका होल ईयर में आपने कितना कितना पैसा खर्चा किया है। यहाँ से अगर आप जाओगे, यहाँ से फिल्टर पे आप क्लिक करके यहाँ पे होल ईयर का यहाँ पे सिलेक्ट करोगे तो यू कैन एक्चुअली सी कि चलो ठीक है, कहाँ कहाँ पे कितना पैसा खर्चा हुआ है। वैसे ही करके आप अपना इनकम का भी वैसे कर सकते हो। इनकम का ये साल में
आपका कौन से एरिया से सबसे ज़्यादा इनकम आया है. इफ़ यू वांट टू रियली सी यू कैन एक्चुअली जस्ट फिल्टर एंड आई मीन देयर आर मेनी फिल्टर्स, यू कैन जस्ट सिलेक्ट इट हियर एंड यहाँ पे जो भी आप फिल्टर क्रिएट करो उसके हिसाब से यहाँ पे चार्ट्स बन जाएंगे. वैसे ही करके लाइन चार्ट भी आ गया. उसके बाद जब इनकम हो मंथ वाइज इनकम जैन फेब हर मंथ का ऑटोमेटिकली ये प्लॉट हो जाएगा, ऑटोमेटिकली कलर वाइज प्लॉट हो जाएगा. अगर आपको अलग कुछ कलर चाहिए, इफ़ यू रियली डोंट लाइक दिस कलर प्रॉब्ली यू कैन ऑल्सो चेंज द कलर्स. तो यहाँ पे कलर्स का ऑप्शन भी है, ऑटो है. अगर आपको कलरफुल चाहिए, अगर आपको स्पेसिफिक ग्रीन्स चाहिए, अगर आपको स्पेसिफिक स्टील चाहिए, एनी कलर यू आई नॉर्मली कीप इट एज कलरफुल सो एटलीस्ट पूरा मल्टीपल कलर्स होके आ जाते हैं. तो यू कैन एक्चुअली सी कि चलो ठीक है हर मंथ वाइज में कहाँ से पैसा है, कितना कितना पैसा हुआ है, एंड एक्सपेंसेस हर मंथ वाइज की टोटल में कितना एक्सपेंस हर मंथ कितना हो रहा है. तो एटलीस्ट यू कैन पुट ए चेक कि हर महीने में मेरा कितना एक्सपेंस हो रहा है, कैसे कैसे कहाँ कहाँ पे जा रहा है. एंड ऑल दिस फुल्ली ऑटोमेटेड. यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग. आपको ओनली यहाँ पे कैटेगरीज क्रिएट करना है इनकम का एंड एक्सपेंस का. उसके बाद हर दिन खाली अपना एक्सपेंस यहाँ पे ऐड करोगे, इनकम यहाँ पे ऐड करोगे, इनकम एक्सपेंस इतना ऐड करना है. एंड उसके बाद जाके नीचे आप जैसे स्क्रॉल करोगे ये सारा ऑटोमेटेड है. ये सारा चार्ट जो ये फुल्ली ऑटोमेटेड है. कुछ भी आपको मैनुअल डेटा डालना नहीं है. आप अपना ओनली इनकम एंड एक्सपेंस डालोगे एंड ऑल दोज चार्ट्स विल बी फुल्ली बिल्ड. एंड यहाँ पे जो नीचे नीचे जो चार है ये चार डेटा बेस है. डू नॉट टच दिस. मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, डू नॉट दिस बिलो. ठीक है, नहीं तो अगर आपने यहाँ से कोई एक चीज़ को डिलीट कर दे ये पूरा डेटाबेस ही टूट जाएगा. ठीक है, यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं करना है. आपको ओनली यहाँ पे कैटेगरीज बनाना है, इनकम एंड एक्सपेंस को ऐड करना है एंड दैट्स ऑल. एंड ऑटोमेटिकली यहाँ पे आपके सारे एंट्रीज आ जाएंगे एंड यहाँ पे ऑटोमेटिकली ये सारा प्लॉटिंग सब कुछ ऑटोमेटिकली हो जाएगा. वेरी इंट्यूटिव. यू डोंट हैव टू यूज़ मल्टीपल रैंडम ऐप्स फॉर दिस. जस्ट सिंपली यूज़ नोशन. फ्री ही ऐप डायरेक्टली यूज़ करके उसके अंदर अपना डेटा को डाल सकते हो. मैं नोशन का लिंक एंड ये अपना जो नोशन का टेम्पलेट इसका लिंक मैं नीचे में दे देता हूँ. इट्स वेरी ईजी. जस्ट ओपन माई लिंक, क्लिक ऑन डुप्लीकेट, इट विल बी duplicated automatically to your notion. उसके बाद जाके अपना डेटा डालो. मेरा डेटा will be, you can simply just go ahead and delete from here, delete and delete my entries as well and start entering your own data. If you've got any question let me know. Alright guys, that's it today. Hopefully you loved the video. So ये income expense tracker notion template का link मैंने नीचे में description में दे दिया है. Go ahead, click it and get it. And coupon code is India. That is only valid for next 3 days. So at least if you really need the access to income and expense, probably you can just go ahead, use it and buy it. And this is not for someone who is not earning, because I personally believe you need to, when you're making money, when you're earning money, you should always use the right tools. You need to always invest on the right tools to keep yourself in check. This is exactly what I do. I spend a ton of money on courses. I spend a ton of money on tools. I spend a ton of money on every kind of stuff, application, everything, whatever makes my process easy for my investing, saving, like expense, everything track. Hopefully you loved the video. Link मैं नीचे में दे दिया है. Go ahead and check it out. If you have got any questions about it, let me know in the comments and we will talk about it soon.